Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you people will be fine. Today the topic that we are going to discuss is the evolution of the birds. Birds are evolved from the feathered theropods. Now how they are evolved from the feathered theropods and what are the characteristics and what are the evidences, what are the reasons that link the theropods and the birds. Evolution of the birds. The evolution of the birds thought to have begun in the Jurassic period. They evolved from the ancient archosaurs, a lineage shared by the dinosaurs and the crocodiles. Birds are closely related to a group of the dinosaurs in Saurischian lineage called theropods. Basically, the evolution of the birds is closely related with the evolution of the reptiles because they are evolved from the reptiles. If you know about the evolution of the reptiles, you can easily understand the evolution of the birds. And some of our classmates have been discussed this topic. You can see here that the reptiles have two clades, Lepidosauria and Archosauria. Lepidosauria contain tuatara, lizards and the snake, while the Archosauria contain turtle, crocodiles and the birds. सो अगर हम बर्ड्स की जगह यहाँ पर डायनासोर्स लेके और डायनासोर्स में भी फिर जो सूरिशियन लीनिएज है वो लेके थीरोपोड्स, जिससे फिर बाद में बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, तो ये इजी होगा. In many cases, we say that birds are closely related with crocodile because of the common ancestor. Now, question arises that why we say that birds are closely related with the crocodile, not other reptiles. So the answer is simple, that because of the common ancestor. You can see here that Archosauria have the two main classes, Crocodilia and the birds. These two are say very closely related. लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन एंसेस्टर बाकी उनमें का जो अपेरेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है. एक में टीथ है, दूसरे में नहीं है. एक में क्रोकोडाइल में अपेंडेजेस है, दूसरे में फीदर्स है, तो वो डिफरेंट है. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स. नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि जो बर्ड्स है वो उनका एक अलग क्लास है, और बाज़ दफ़ा कहते हैं कि बर्ड्स आर द स्टिल रेप्टाइल्स. देन हाउ? To remove this ambiguity, I want to discuss the classification of the birds. एक क्लासिफिकेशन है ट्रेडिशनल, दूसरा क्लैरिस्टिक. ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन है हम ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक करते हैं, तो देयर आर मैनी करेक्टरिस्टिक विच इज़ प्रेजेंट इन ओनली इन बर्ड्स, नॉट इन द अदर रिप्टाइल्स. दिस करेक्टरिस्टिक आर अपेंडेजेस मॉडिफाइड इनटू विंग्स. रिप्टाइल्स में जो अपेंडेजेस थे वो बर्ड्स में विंग्स में चेंज हो गए. एसिमेट्रिकल फीदर्स आ गए. नेमोटिक बोन एसिमेट्रिकल फीदर इसलिए क्योंकि फ्लाइट के लिए एसिमेट्रिकल फीदर्स रिक्वायर्ड होते हैं. नेमोटिक बोन जो कि एयर स्पेसिस प्रोड्यूस हो गए, बोन में बोन्स लाइट हो गए टू असिस्ट इन द फ्लाइंग. एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म. रिप्टाइल्स आर एक्टोथर्मिक while birds are the endothermic that maintain their body temperature and can produce its own body heat. Instead of teeth, they have beak. Reptiles have teeth and these have a beak. सो ट्रेडिशनली अगर हम देखें ट्वाटारा, लेजर, स्नैक और जो आर्कोसौरिया में जो टर्टल और क्रोकोडिलियंस आते हैं उनको हमने रेप्टाइल्स में रखा है, वाइल जो बर्ड्स हैं उनको हमने अलग क्लास में रखा है बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. तो जो हम कहते हैं कि बर्ड्स को हमने अलग क्लास दिया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. द सेकेंड क्वेश्चन इज समटाइम वी से दैट बर्ड्स आर स्टिल रेप्टाइल्स, देन हाउ? A cladistic is a biological classification in which organisms are classified on the basis of the common ancestor. On the basis of this classification, non-avian reptiles and avian reptiles are placed in the one group called Sauropsida. You can compare here the linear classification and the phylogenetic classification. लीनियर क्लासिफिकेशन में जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स है वो डिफरेंट क्लासेस में हैं, क्योंकि एक कोल्ड ब्लडेड है, एक्टोथर्मिक है और स्केल्स है उनकी बॉडी पर, जबकि दूसरा वार्म ब्लडेड है, एंडोथर्मिक है और फीदर्ड है उनके पास. फाइलोजेनेटिक में अगर हम देखें तो सौरोप्सिडा है. दोनों रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स को हमने एक ही क्लास में रखा है. यहाँ पर भी वही रिपीट हुआ है. Glorified reptile. Now, why birds are called as a glorified reptiles, and who that said that birds are the glorified reptile? In 1860, T.H. Huxley described the birds as glorified reptiles, include them in the class Sauropsida. हमने पहले भी कहा कि birds और reptiles को हमने Sauropsida क्लास में रखा है. क्यों? On the basis of the common ancestor. लेकिन कुछ साइंटिस्ट और जो हुक्सले ने कहा glorified reptiles और उनको Sauropsida में रखा, तो उनको on the basis of the कुछ उनमें सिमिलरिटीज़ थे. उस बेसिस पर सिमिलरिटीज़ क्या थी? सिंगल ऑक्सीपिटल कंडाइल ऑन द स्कल, जो अटैचमेंट है स्कल की और द फर्स्ट वर्टिब्रे की. लोअर जॉ स्ट्रक्चर. अच्छा,
इनमें 5 to 6 बॉन्ड हैं जो रिप्टाइल्स और बर्ड्स हैं। बहुत सारे बुक में आप लोग पढ़ेंगे और नेट पर भी अगर आप लोग सर्च करें तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि मैमल्स, रिप्टाइल्स और बर्ड्स को कंपेयर किया है, जिसमें बर्ड्स और रिप्टाइल सेम है और मैमल डिफरेंट है। जिस तरह मैमल्स में लोअर जॉ स्ट्रक्चर जो है उसमें एक ही बॉन्ड है, सिंगल ईयर ओसिकल है बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स में, वाइल मैमल्स में 3 है, स्टेप्स, मेलियस एंड इनकस। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर हम करें, प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लिएटेड आरबीसी वाइल मैमल्स हैव द एन्यूक्लिएटेड आरबीसी। Function of liver and kidney is same in the birds and reptiles that produce the uric acid as a nitrogenous waste, while in mammal it produces the urea as a nitrogenous waste. Large एक योग होता है behavioral similarities caring of their young ones, although ये सब reptiles में नहीं है, कुछ reptiles बहुत ही कम reptiles है जो young ones के जो वो caring करते हैं। Class Sauropsida वही है, the yellow color represent the class Sauropsida which include the both the reptiles and the aves. एविडेंस दैट लिंक बर्ड्स टू द डायनासोर्स। मैंने पहले कहा, फर्स्ट में कहा कि वो कौन से एविडेंसेस थे कि हम ये कहते हैं कि बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम द रिप्टाइल्स, और रिप्टाइल्स में भी फिर डायनासोर से जो थीरोपोड से उससे इवॉल्व हुए। तो कुछ एविडेंसेस ये हैं। ड्रीमियोसॉर इज अ ग्रुप ऑफ द थीरोपोड्स दैट शेयर मैनी एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक विद द बर्ड्स। दीज आर द पिक्चर ऑफ द ड्रोमियोसॉर्स। उनमें फर्कुला था, ल्यूनेट रेस्टबोन था, ये आप लोग देख सकते हैं फर्कुला जो कि फ्यूज्ड क्लेविका है, और ये ल्यूनेट रेस्टबोन है। एडिशनल एविडेंस द लिंकिंग बर्ड्स टू ड्रीमियोसॉर इज द डिस्कवर्ड फॉसिल ऑफ दिस ग्रुप। फॉसिल्स रिकॉर्ड सिनोसॉरोप्टेरक्स की अगर हम बात करें तो इसका साइज जो होता है वो चिकन के बराबर होता है। एंड हैव फीदर्स, इसके जो फीदर्स होते हैं वो बिल्कुल फिलामेंट्स की तरफ होते हैं, और हम कहते भी फिलामेंट्स है जो कि होलो होते हैं अंदर से, बट दीज फिलामेंट्स आर नॉट यूज फॉर द फ्लाइंग। Caudopteryx, it is a turkey-sized theropods with symmetrical feathers on forelimbs, appendages and the tail. You can see here forelimbs and the tail पर feathers है। नाइदर ऑफ दी जो सिनोसॉरोप्टेरक्स है और कोडोप्टेरक्स है, इनमें से कोई भी बेस्ट फ्लायर नहीं था, बिकॉज वन हैव द फिलामेंट एंड द अदर हैव सिमेट्रिकल फीदर्स, while फॉर फ्लाइट asymmetrical feathers are required. Arboreal dromaeosaurs जो है माइक्रोरैप्टर have asymmetrical feathers which were probably used for gliding or controlling jumping from trees. Now question arises that asymmetrical feathers are required for the flyer, then why a microraptor was not a good flyer? So बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मे बी इनके जो बोन्स थे वो लाइट नहीं थे, और उनके जो मसल्स थे वो डिज़ाइन नहीं थे फॉर फ्लाइट। बाद में जो एवोल्यूशन हुई है उसके बाद जब जो बोन लाइट हो गए और मसल्स जो है वो डिज़ाइन हो गए फ्लाइट के लिए, बाद में फिर कुछ बर्ड्स थे वो फ्लाई कर सकते थे। लाइक आर्क्योप्टेरिक्स की बात अगर हम करें, बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं आर्क्योप्टेरिक्स इज़ नॉट अ ट्रू बर्ड, बट आर्क्योप्टेरिक्स इज़ जस्ट लाइक अ बॉर्डर। जितना मैंने स्टडी की है, और मुझे लगता है कि इट्स जस्ट लाइक अ बॉर्डर बिटवीन द डायनासोर्स एंड द मॉडर्न बर्ड्स, बिकॉज इट प्रोड्यूस द कील, स्टर्नम, अल्यूला, लॉस ऑफ टीथ एंड फ्यूजन ऑफ द बॉन, दैट इज द फॉर्कुला, दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न बर्ड्स. So you will study more about the Archaeopteryx in the evolution of the flight, but it's just Archaeopteryx can fly. It can fly, and the evolution of flight began from this Archaeopteryx. You will study it. Phylogenetic approach to classification group birds with theropod dinosaurs. With this view, dinosaurs are not extinct but still alive in the form of the birds with some modification. I have taken this sentence from the Hickman book, जिसमें साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे पास जो डायनासोर्स है वो एक्सटेंड नहीं हुए हैं, बल्कि वो आज भी हमारे पास मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ द बर्ड्स बट विद सर्टेन मॉडिफिकेशन. यीकी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बैट लाइक अर्पोरियल डायनासोर्स जो कि डिस्कवर हुआ है चाइना में. एंड थैंक यू सो मच.